کہ سارے فیصلے بین الاقوامی جو بین الصوبائی وزرائے تعلیم کی ہماری کانفرنس تھی، جس کو انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس کہتے ہیں، IPMC، وہ ایک فعال ادارہ بن کے سامنے ابھرا، اور جتنے بھی فیصلے ہم نے کیے سارے کے سارے متفقہ طور پہ کیے کہ اسکول تعلیمی ادارے بند کب ہوں گے، تعلیمی ادارے کھلیں گے کب، امتحانات پہ کیا ہوگا، یہ سارے فیصلے متفقہ طور پہ سارے جو ہمارے 4 صوبے اور باقی 2 اکائیاں ہیں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، سب کی مشترکہ مشورے سے یہ فیصلے ہوئے، اور اس لیے ہمارے لیے ممکن ہوا یہ فیصلے کرنا اور مشکل حالات میں صحیح فیصلے کرنا۔ تو جب ہم نے پچھلے سال تجربہ کیا کہ کچھ ہم نے امتحانات کے بغیر بچے پاس کیے کچھ، تو اس کے بعد ہمیں کچھ ایکسپیرئنس ہوا، اور اس میں تعلیمی وزراء جو تھے سارے صوبوں کے، انہوں نے ایک فیصلہ کیا جس پہ، اور یہ فیصلہ ہم نے پچھلے سال کیا آخری دسمبر میں، اور اس پہ ہم آج تک قائم ہیں، اور وہ فیصلہ کیا ہے کہ گریڈز کوئی بھی نہیں ملیں گے امتحان کے بغیر، یعنی کہ امتحان ہوگا، اور امتحان کوئی ایسا گریڈ امتحان کے بغیر نہیں ملے گا۔ اس کی کئی وجوہات تھی، ایک تو ہمارا پچھلے سال کا تجربہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کلیئر تھا کہ سب سے فیئر ٹیسٹ جو ہے وہ ایکسٹرنل ایگزامینیشن کا ہے، کیونکہ ادروائز باعث آ جاتی ہیں، آپ کا اپنا ایک سوچ آ جاتی ہے، کسی اسکول میں کوئی ٹیچر جو ہے وہ زیادہ کھل کے نمبر دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا، سارا ایک پیمانہ نہیں ہوتا، ایکسٹرنل امتحان جو ہے وہ ایک ہی پیمانہ ہو جاتا ہے۔ ابھی لوگ انگلینڈ کی مثال دیتے ہیں، ابھی ریسنٹلی انگلینڈ میں خبر آئی ہے کہ جو والدین ہیں وہ کورٹ کیس کرنے لگے ہیں، کیونکہ ان کے اسکول کے اسیس گریڈ پہ ان کو اعتراض ہے، لیکن ایکسٹرنل امتحان پہ لوگ اعتراض نہیں کرتے، کیونکہ ایکسٹرنل امتحان جو ہے ایک ایسا پیمانہ ہے جو سب کے لیے ایک برابر ہے، یکساں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے حالات میں میجورٹی، اس میں فرق ضرور ہے، لیکن میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس وہ ہیں جو کہ آخری 1.5-2 مہینے میں پڑھتے ہیں امتحان سے پہلے۔ آپ سب طالب علم رہے ہیں، میں بھی طالب علم رہا ہوں، ہمیں پتہ ہے کہ امتحان قریب آتا تھا تو پڑھائی شروع ہوتی تھی، اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی۔ امتحان کا نہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ جو پڑھائی تھوڑی بہت ہونی بھی تھی وہ بھی نہیں ہوتی، تو اس لیے ہم نے کہا کہ امتحان کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس سے جو لرننگ لاسز ہو رہے ہیں اس میں کچھ کمی آئے گی۔ تو ان وجوہات کی بنا پہ ہم نے فیصلہ کیا کہ امتحان اس سال ہم نے ضرور لینے ہیں، اور گریڈز کیمبرج کا امتحان آیا، ایک دم بیماری میں شدت بے پناہ اضافہ ہوا، لیکن پھر بھی ہم نے جو A2 تھا اس کا ایگزام لیا، اور اگلے چند دنوں میں وہ ایگزام مکمل ہو جائے گا، اور کوئی 25 سے 30 ہزار بچوں نے وہ امتحان لیا، بخیر و عافیت جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جو O لیول کے بچے ہیں ان کے لیے کیمبرج نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک اسپیشل ایگزام جولائی میں لیں گے، 26 جولائی سے 6 اگست تک، وہ بھی ہوئی۔ اب مسئلہ رہ گیا تھا 9، 10، 11، 12 کا۔ فیصلہ تو وہی تھا اور وہی ہے کہ امتحان تو ہوگا، لیکن ایک چیز کے بارے میں ہم نے بیٹھ کے مشورہ کیا، اور آج سارے وزراء، صوبائی وزراء موجود تھے آج کی میٹنگ میں، تو ہم نے کہا کہ ایک بات تو طلباء کی درست ہے، اور ہمیں اس کو ایکنالج کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ اسکول بند ہوتے رہے اس لیے ان کا جو کورس ورک ہے وہ پوری طرح مکمل نہیں ہو سکا۔ تو یہ ایک جینون کمپلینٹ ہے اسٹوڈنٹس کی، اور ہم اس کو اکنالج کرتے ہیں کہ یہ صحیح کمپلینٹ ہے کہ اسکول کیونکہ بند ہوتے رہے، کھلتے رہے، بند ہوتے رہے، کھلتے رہے، تو یکسوئی سے جو
पढ़ाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। तो इसी सिलसिले में आपको याद है कि हमने आज से कई माह पहले ये फैसला किया था कि हमने जो सिलेबस था उसमें से 40% रिड्यूस कर दिया था। और ये जो 40% रिड्यूस किया था वो इसलिए किया था कि बच्चों को सिलेबस मुकम्मल करने की और स्कूल को सारा वक्त खुला नहीं रहा था। सो इसलिए ये जेन्युइन बात है। और ये कहना कि जी इम्तिहान जो है वो उसके लिए हमें पूरा कोर्स वर्क पूरा मुकम्मल करना नहीं कर सके, तो ये बात दुरुस्त है। इसलिए हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और जो इस वक्त हमारे जो बीमारी के हालात हैं उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ फ़ैसले किए हैं और जो हमने कुछ तब्दीलियां की हैं। और जो तब्दीलियां की हैं वो ये है कि 9-10 यानी कि 9वीं और मैट्रिक का इम्तिहान जो है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में लिया जाएगा, उन मज़ामीन में जो बच्चों ने चूज़ किए हैं, और उसके साथ मैथमेटिक्स जो सब के लिए यकसा है वो भी उसका भी इम्तिहान होगा। यानी कि 9वीं 10वीं का इम्तिहान जो है वो 4 मज़ामीन में होगा, बाकी जो मज़ामीन है उनमें नहीं होगा, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और मैथमेटिक्स। 11वीं 12वीं का जो इम्तिहान है वो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में होगा। और ये हमने इसलिए भी सोचा है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का कि अगर किसी ने डॉक्टर बनना है तो उसने बायोलॉजी ली हुई है, उसने केमिस्ट्री ली हुई है वगैरह, किसी ने इंजीनियर बनना है तो उन्होंने और फिज़िक्स और बाकी सब्जेक्ट्स लिए हैं। तो जो भी किसी ने जिस स्ट्रीम में जाना है उस स्ट्रीम का इम्तिहान हम ले लेंगे, और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनका इम्तिहान नहीं देंगे। तो ये इससे स्टूडेंट्स के लिए कुछ आसानी जो है वो पैदा होगी। और दूसरा जो आसानी हमने पैदा की है, क्योंकि हम एग्ज़ाम शुरू कर रहे थे, सारे पाकिस्तान के बोर्ड जो थे वो 24 जून से इम्तिहान शुरू कर रहे थे। अब उन्होंने कहा है कि 10 जुलाई के बाद आप इम्तिहान शुरू करें, यानी कि मज़ीद 2-3 हफ्ते जो हैं वो बच्चों को मिल जाएंगे तैयारी करने के लिए। और तीसरा हमने बोर्ड्स को ये भी कहा है कि एक पर्चे और दूसरे पर्चे में थोड़ा सा वक्फा भी रखें, ताकि ये करने का मकसद ये क्यों किया है, ये करने का मकसद ये क्यों किया है, स्कूल चले नहीं तो सही तरह कोर्स नहीं हुआ, खास्ता बीमारी जो है उसका। इसका एक और फ़ायदा ये है, अच्छा हाँ, इसके अंदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डेट का मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट का बता दिया, 10वीं और 12वीं के इम्तिहान पहले होंगे और 9वीं और 11वीं के इम्तिहान जो है वो बाद में होंगे। यानी कि अगर 10 जुलाई के बाद इम्तिहान हो रहे हैं 10वीं 12वीं के, तो फिर 9वीं 10वीं के जैसे ये ख़त्म होते हैं उसके बाद। और उसकी भी उसकी वजह यह है कि हम ये चाहते हैं कि, और बोर्ड्स ने आज ये इस चीज़ का अंदिया दिया है, हम ये चाहते हैं कि तीसरे हफ्ते सितंबर तक सारे रिज़ल्ट जो है वो आ जाएं, और जब वो रिज़ल्ट आ जाएं तो यूनिवर्सिटी में और मेडिकल कॉलेजेस में और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और बाकियों में दाखिला जो है वो आसान हो सके और मुमकिन हो सके। वरना अगर ज़्यादा देर होगी तो वो फिर उनका टाइम टेबल जो है वो डिले होगा। तो दूसरा ये फ़ैसला किया गया है कि अभी हमने आपको पता है कि 10वीं और 12वीं की क्लासेस अलाउड कर दी हैं,
दूसरा हमने फ़ैसला ये किया है कि हमने 9वीं और 11वीं की क्लासेस भी अलाउ कर दी हैं, ताकि ये बच्चे जिन्होंने इम्तिहान देना है इनको इनकी जितनी भी पढ़ाई मुमकिन हो सके वो हो, और वो स्कूल में आएँ और आके अपने टीचर से मिले और जो भी सिलसिला है उसको करें। साथ साथ हमने ये भी फ़ैसला किया है कि कोई भी उस्ताद जो इम्तिहान लेगा वो कोरोना वैक्सीनेशन के बगैर नहीं लेगा, और इसलिए हमने प्रायोरिटी दी है कि सारे जो टीचर्स हैं उनकी वैक्सीनेशन प्रायोरिटी बेसिस पे होगी। और आज हमने सूबों को अश्योर कराया कि अगर कहीं पे किसी को वैक्सीनेशन की कमी है या कुछ है तो वो हमें बताएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब आइंदा, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने 1.5 साल ये बीमारी का गुजार लिया है तकरीबन। अल्लाह बेहतरी करेगा, लेकिन आइंदा कोई पता नहीं क्या सूरत हाल होगी। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हम सारा जो सेक्टर है एजुकेशन का इसकी वैक्सीनेशन कर लें तो फिर हमारे लिए स्कूल्स को और यूनिवर्सिटीज़ को और बाकी तालीमी इदारों को खुला रखना जो है वो आसान हो जाएगा। उसके अलावा जो हमने यूनिवर्सिटीज़ से ये भी गुजारिश की है, और मैं उसका सिर्फ पहले भी कहा है दोबारा उसका, कि जो ए लेवल के बच्चे अक्टूबर नवंबर में इम्तिहान दे रहे हैं उनको यूनिवर्सिटीज़ कंसिडर करेंगी प्रोविजनल एडमिशन के लिए। सो उनकी प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगी, वो इम्तिहान दे के अपना रिज़ल्ट जो है वो आके वो दिखाएंगे। और ये प्रोविजनल एडमिशन सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होगी, हम सारी यूनिवर्सिटीज़ से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो बच्चे अक्टूबर नवंबर में A2 का इम्तिहान दे रहे हैं उनको अकोमोडेट किया जाए, जो कि ज़्यादा नहीं है लेकिन जितने भी हैं उनको अकोमोडेट किया जाए। इसी तरह हम इंजीनियरिंग और MD कैट और मेडिकल का जो एंट्री टेस्ट है उसमें भी कहेंगे कि जिन बच्चों ने अभी इम्तिहान अनकरीब में देना है उनको टेस्ट में बैठने की इजाज़त दी जाए। तो ये मुख्तसरन मोटी मोटी बातें हैं जो कि आज की बैनुल सूबाई वज़रा की जो मीटिंग थी उसमें तय हुई। ये फ़ैसला अटल है, जैसे हमने शुरू से कहा था और जिस पे आज भी कायम है कि इम्तिहान हर सूरत में होंगे। इसी तरह हमने बहुत सारे बच्चों के जायज़ मुतालबा जो थे उनको मद्देनज़र रख के जो फ़ैसले किए हैं कि इम्तिहानात जो है उनके मज़ामीन कम कर दिए हैं, डेट शीट को आगे कर दिया है, डेट शीट में वक्फ़ा जो है उसको बढ़ा दिया गया है। ये सारी चीज़ें जो है वो इसलिए आसानी पैदा की है, लेकिन अब इसमें फ़ैसले में कोई तब्दीली नहीं होगी। और उस पर ना पहले हमने दबाव बर्दाश्त किया है, दबाव जो है उसको अपने ऊपर हावी होने दिया है और ना ही आइंदा होगा। ये फ़ाइनल फ़ैसला है, बच्चों के मुस्तक़बिल का फ़ैसला है, बच्चों की पढ़ाई का फ़ैसला है और उनकी बका का फ़ैसला है। तो ये फ़ैसले जो है आज किए हैं, तो इसके बाद अगर सवालात हैं तो कोई कर लें। मगर अभी आप ये बताइए स्कूलों में वैक्सीनेशन की आप कब से शुरू कर रहे हैं? मतलब ये स्कूल में ही आपकी स्कूलों में जाएगी, वहाँ जाके करेगी? देखिए, हमने स्पेशल इस्लामाबाद में अगर आपको पता है कि FDA ने स्पेशल कैंप लगाए हैं वैक्सीनेशन के लिए, और वो मज़ीद कैंप, इसी तरह सूबाई हुकूमतों को हमने आज गुजारिश की है, कुछ ने कर भी लिया है कि वो एक स्पेशल कैंप्स लगाएं और सब कोशिश करें कि जिस तरह मुमकिन है, और प्राइवेट स्कूल से भी कहूँगा, बाकी उस कहीं अगर किसी को वैक्सीन की कमी महसूस होती है तो वो फेडरल मिनिस्ट्री को बताएं और हम NCOC के साथ रब्ता करके इंश्योर करेंगे कि उनको वैक्सीन जो है वो मिल जाए।